and welcome everyone. I'm your science teacher Himrata Chandolia. Students, today we are going to continue chapter number 17 of class 7 science, that is forest, our lifeline. Students, today we will continue our visit to a forest and under which we will discuss interrelationships of plants, soil and decomposers in a forest. Clear everybody? So have a look on the topics which we are going to cover today. First we will discuss about the food chain. Clear class 7? After that we will discuss what is humus, who are decomposers. And decomposers are not a new thing for us. We already had studied in our previous chapters of class 7th. Okay? याद करिए कहाँ पढ़ा था? Why forest called dynamic living entity? Okay. After that we will answer how forests prevent floods and soil erosion, and this one is very important topic class 7th. And finally what we have to discuss, what would happen if forests disappear? That means what would happen if deforestation continue? Clear everybody? So let's begin today's video with the forest components. अब देखो बच्चा, components में क्या है? हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं forest में, plants हैं, animals हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. Students, here we are going to discuss about autotrophs, heterotrophs and saprotrophs. Clear everybody? अब बच्चा ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? रिमेंबर चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल. याद आया? सो ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं प्लांट्स. क्यों? बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड. और किससे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. याद आ रहा है? And student, here they are producing foods for other animals, so they are also known as producers. Clear everybody? Plants are autotrophs and they are also producers because green plants produce food by the process of photosynthesis. अब जो animals हैं like human, like lion, जितने भी हैं they are known as heterotrophs. heterotrophs का मतलब क्या है? जो अपने food के लिए दूसरों पे dependent हैं. Clear everybody? जैसे हम हमारे food के लिए किस पे dependent हैं? If we are vegetarian, that means we are dependent on plants. If we are non-vegetarian, that means we are dependent on other animals. Clear everybody? That's why heterotrophs are also known as consumers because हम consume कर रहे हैं. Clear? अब बात करते हैं saprotrophs की. देखो बच्चा, those organisms which obtain nutrition from dead and decaying plants and animal matter, they are known as decomposers or saprotrophs. याद आया? ओके और एग्जाम्पल्स क्या हैं? हमारे जितने भी जो डिकम्पोजर्स हैं, आपके मशरूम्स हैं, मोल्ड्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, ये क्या होता है? ये जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे वो एनिमल्स का हो, ये उस पे फीड करते हैं. क्लियर एवरीबॉडी? ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड. समझ में आ गया? चाहे वो कार्निवोर एनिमल हो चाहे हर्बीवोर हो, डिपेंड किस पे हो रहा है? अल्टीमेटली प्लांट्स पे. और स्टूडेंट, जब हम इस चीज को एक चेन की उसमें देखें, दैट मीन्स प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं हर्बीवोर को कंज्यूम कौन कर रहे हैं? कार्निवोर. क्लियर एवरीबॉडी? सो देयर इज अ चेन, ऑल आर इंटरडिपेंडेंट. Clear everybody? Students, organisms which feed on plants often get eaten by other organisms and so on. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत इजी सा है जो हम हमारी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. What is that? Grass is eaten by insects which in turn is taken by the frog, and frog is consumed by snakes or eagles.
Clear everybody? And this is said to form a food chain. हमने क्लास 6 में food chain पढ़ी है, याद करिए उसे. So students, have a look on a simple food chain. देखो बच्चा, what happened exactly? The plants, or we are taking a grass as an example here. These are autotrophs. So they will eaten by a animal, or we can say a herbivore. Suppose the insect eat the grasses and these insects are eaten by frog, और frog को खाएंगे snake, और snake ultimately food बनेंगे eagle के लिए. That means here there is a chain. Clear? एक chain बनती जा रही है and this is known as a फूड चेन. क्लियर एवरीबॉडी? और हमारे जो फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट में ये फूड चेन कंबाइन होके एक फूड वेब बनाती है, और हमने फूड चेन के बारे में क्लास 6 में अच्छे से पढ़ रखा है. सो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फूड चेन वी कैन से दैट ये जो फॉरेस्ट है इसका एक अपना सस्टेनिंग सिस्टम होता है, और फॉरेस्ट के अंदर एक पार्ट दूसरे पार्ट पे डिपेंडेंट होता है. Clear everybody? So we can say that forests are self-sustaining systems. Every part of the forest depend on the other part. ठीक है? Plant अगर हैं तो उन्हें जो खाएंगे, that means the herbivores, they are depend on plants. अब herbivore पे डिपेंड कौन कर रहा है? कार्निवोर्स. क्यों? क्योंकि उनके लिए फूड क्या है? herbivore. और herbivore के लिए फूड कौन है? प्लांट्स. क्लियर एवरीबॉडी? अब इसको वापस एक बार देखो कि जंगल में जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, दे आर मेकिंग देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लियर? सो हियर द प्लांट इज फूड फॉर हर्बीवोर. अब ये हर्बीवोर क्या करता है? इट फीड्स ऑन प्लांट्स. अब ये जो हर्बीवोर है, सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डियर. अब ये जो डियर है, इट विल बी फूड फॉर लॉइन, एंड लॉइन इज अ कार्निवोर. अल्टीमेटली एक दूसरे पे सब डिपेंड है, और अगर इस फूड चेन में एक भी लिंक मिस हो जाता है तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है. नेचर का एक अपना खुद का सिस्टम है बैलेंस करने का. Clear everybody? So students, many food chains can be found in the forest. All food chains are interlinked. Yes, ज़रूरी नहीं है एक ही फूड चेन वहाँ हो, बहुत सारी फूड चेन्स हैं, और ये बहुत सारी फूड चेन्स मिलके फूड वेब बनाती हैं, और ये क्या है? सब interlinked हैं. Clear everybody? Students, if any one food chain is disturbed, it affects the other food chains. If we remove one component, suppose करो अगर हम ट्री को रिमूव कर देते हैं, all other component would be affected. Clear? Okay, students, let's continue our visit to a forest, and now it's time to observe the minute organisms. अब उन organisms को observe करने के लिए हमें क्या जरूरत है? We literally need the magnifying lens. Suppose you are passing from the floor of the forest, and here you find out some decaying or the dry leaves which are scattered there, and with the help of magnifying lens you observe them. Then you will find out many tiny organisms and different types of outgrowth there. So what are they? Let's have a discuss about them. If we pick up leaves from the forest floor and observe them under a hand lens, that is our magnifying lens. Clear everybody? Okay, we found tiny mushrooms over the decaying leaves. Have a look. ऐसे दिखते हैं. अगर आप जंगल में नहीं भी गए हैं तो कोई बात नहीं, हमारे घर के आसपास में जो गार्डन्स हैं, जो पार्क्स हैं, या हमारे घर के बैकयार्ड में अगर हमने एक छोटा सा गार्डन टाइप का कुछ बना रखा है जहाँ पर प्लांट वेस्ट है, क्लियर, पेड़ों की सूखी लकड़ियां हैं, मॉनसून सीजन में बच्चा आप देख सकते हैं कि उन जो प्लांट वेस्ट है उनके ऊपर भी हमें ऐसी आउटग्रोथ्स नजर आती हैं. एंड व्हाट आर एग्जैक्टली दे आर द फंगस एंड दे आर मशरूम्स. Clear everybody? Along with these mushrooms, we also saw an army of tiny insects, millipedes,
ants and beetle on them. Clear everybody? बहुत सारी चींटियाँ होती हैं, बहुत सारे मिलिपिड्स होते हैं, बहुत सारी स्पाइडर्स भी होती हैं, बीटल्स भी होते हैं जो वहाँ पर हैं. क्लियर एवरीबॉडी? स्टूडेंट्स, अब ये जो मशरूम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इट ईट, और ये कैसे मतलब अपने आप को सर्वाइव करता है. बेसिकली मशरूम एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स फीड अपॉन द dead plant and animal tissues and convert them into a dark colored substance that is called humus. Do you remember that? मैंने पहले भी कहा था कि जो फॉरेस्ट की ज़मीन होती है वो हमारे यहाँ पर जो मिट्टी होती है उसकी सॉइल बिल्कुल वैसी नहीं होती है. It is dark in color. And why it is dark in color? Just because of humus. Clear everybody? And do you remember that we already had discussed about the humus in our previous chapter of soil? It is the fertile layer of soil. Clear everybody? अब ये fertile क्यों है बच्चा? Because it is having the nutrients which are given by the decomposer by the consumption of dead and decay parts of plant and animal tissues. क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली हमारी सॉइल को वही न्यूट्रिएंट्स वापस मिल जाते हैं और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को प्लांट की रूट्स क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं, फिर ग्रो करती हैं. Clear everybody? So we can say that the presence of humus ensures that the nutrients of dead plants and animals are released into the soil. Okay? From there, these nutrients are again absorbed by the roots of the living plants. Clear? Students, what happens if any animal dies in the forest? हाँ, अगर जंगल में कोई जानवर मर जाता है तो सीधे तो डिकम्पोजर्स उन पे काम नहीं करते होंगे ना बच्चा. आप लोगों ने कभी देखा है अगर हमारी रोड पे कोई स्ट्रीट एनिमल, आइदर इट इज़ अ डॉग और अ काऊ, अगर वो मर जाते हैं तो हमने देखा है कि उन पे क्या होता है, कुछ वक्त के बाद वो जो हमारे क्रो होते हैं, कौवे होते हैं, वो उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं. क्लियर एवरीबॉडी? सो स्टूडेंट, ऐसे ही जब जंगल में कोई जानवर मर जाता है तो उनको खाने के लिए भी वहां पर दूसरे एनिमल्स हैं. क्लियर एवरीबॉडी? वो क्या करते हैं? वो उनके फ्लैश को खाते हैं. क्लियर? अब बच्चा यहाँ पर हम टाइगर्स को और लॉयंस को इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं? वो शिकार करके खाते हैं. ऐसे ही हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम लोगों में जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो भी क्या करते हैं? वो ऐसे ही कहीं पे मरा हुआ जो कोई एनिमल होता है उसको तो नहीं खाते हैं. दे एक्चुअली ईट द फ्रेश वन. क्लियर एवरीबॉडी? बट those animals which feeds upon the dead animal, ठीक है, they are known as scavengers. Clear? And they are the cleaning persons of our forest. Clear everybody? The dead animals becomes food for vultures, crows, jackals and insects, and they are called scavengers. Clear everybody? In this way the nutrients are cycled so nothing goes waste in the forest. अब vultures आजकल तो नहीं दिखते हैं क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. क्लियर एवरीबॉडी? बट ये जो vultures हैं, ईगल हैं, जिकाल्स हैं या डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं, क्रो हैं, ये हमारे लिए क्या काम करते हैं? ये हमारे लिए क्लीनिंग का काम करते हैं. ये हमारे फॉरेस्ट को क्लीन करते हैं और अल्टीमेटली क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फूड चेन. क्लियर एवरीबॉडी? इसलिए जंगल में कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, चाहे वो प्लांट वेस्ट हो चाहे वो एनिमल वेस्ट हो. क्लियर एवरीबॉडी? स्टूडेंट्स, अब इस चीज़ को आप इस डायग्राम की हेल्प से बहुत अच्छे से वापस रिवाइज कर सकते हैं दैट कि वी आर हैविंग ट्रीज एंड ट्रीज आर जस्ट गिविंग अस द शेल्टर, they are giving us the food. That means they are providing food and shelter for animals and for some human beings which are living in the forest. Clear everybody? And they are absorbing carbon dioxide from the nature and giving us the
oxygen, and these plants make food by the process of photosynthesis, and these plants become the food for herbivore, and those herbivore animals become food for carnivore. And here the decomposers also play their function. They feed upon the dead and decayed matter of plant and animal tissues and ultimately return the nutrient to the soil. Clear everybody? So this is the interrelationship of plant, soil and decomposers in a forest. Clear? अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. हमने फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ कहा है. क्यों कहा है बच्चा? बिकॉज वी नो दैट प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ photosynthesis, and the plants help to provide oxygen for animal respiration. ये हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वो क्या यूज़ करते हैं? वो यूज़ करते हैं CO2 और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन फॉर एनिमल रेस्पिरेशन. Clear everybody? And they also maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere, and that's why they are called lungs. Clear everybody? अब इसका एक quick सा diagram देखो. Here these are the plants or the trees. They are giving you oxygen and which is consumed by humans and animals, and they release carbon dioxide which is used by plants during photosynthesis process. Clear? And in this way the forest is making a balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Clear? कंसेप्ट समझ में आ गया. अब हम डिस्कस करते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए एसेंशियल क्यों है. क्लियर? द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. देखो, हमने बात करी कि एनिमल्स और दूसरे प्लांट्स के लिए जो डिफरेंट वेराइटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं हमारे पास, उनके लिए जो हमारा फॉरेस्ट है, इट इज़ प्रोवाइडिंग food and shelter. But along with animals and plants, human beings को भी ये क्या करते हैं? शेल्टर देते हैं, उन्हें खाना देते हैं. क्लियर? आप लोगों ने ट्राइब्स का नाम सुना है, जनजातियां जिनको हम कहते हैं. क्लियर? अभी भी बहुत सारे जंगलों में बहुत सारी जनजातियां रहती हैं. लाइक अंडमान और निकोबार में जो जरवा जनजाति है वो आज भी सर्वाइव कर रही है. वो लोग वहाँ रहते हैं. दैट मीन्स द फॉरेस्ट इज प्रोवाइडिंग फूड एंड शेल्टर टू देम. Clear everybody? So we can say that forest is not just home to plants and animals. Many people also live in the forest. Some of them may belong to different tribes. The forest provide them food, shelter, water and medicines. Yes, और वो तो हमें पहले ही पता है, जंगल हमें क्या देता है? मेडिसिन्स भी देता है. और इसीलिए इन ट्राइब्स के पास बहुत सारा नॉलेज होता है इन प्लांट्स को, इन ट्रीज को लेके. दे आर वेरी गुड इन मेडिसिन्स. Clear everybody? Students, the forest officers could recognize the presence of some animals in the forest by their droppings and footprints. देखो, अगर आप कभी किसी नेशनल पार्क से गुजर रहे हैं या सेंचुरी से गुजर रहे हैं, किसी भी जंगल से गुजर रहे हैं, तो हमें वहाँ पर क्या है कि जो एनिमल्स हैं उनके ड्रॉपिंग्स नज़र आते हैं. जैसे काउ डंग हो गया, तो ऐसे ही किसी और एनिमल का ड्रॉपिंग हो गया, उनके फुटप्रिंट्स होते हैं. तो ये जो ड्रॉपिंग्स हैं और ये जो फुटप्रिंट्स हैं फॉरेस्ट के अंदर, ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स को बहुत अच्छी हेल्प करते हैं रिकॉग्नाइज करने में कि हाँ, इस वाले एरिया में कौन से एनिमल्स हैं या फिर यहाँ पर किस एनिमल की टेरिटरी है. क्लियर? ये हेल्प करते हैं कि हाँ, कि इस जंगल के अंदर ये पर्टिकुलर एनिमल भी रहता है. Clear everybody? Students, the wide variety of animals helps the forest to regenerate and grow. Clear? Students, along with this, decomposers help in maintaining the supply of nutrients to the growing plants in the forest, and therefore the forest is a
dynamic living entity, or we can say that forest is full of life and vitality. क्लियर एवरीबॉडी? बिल्कुल हरा भरा पूरा परिवार है हमारा जंगल, जिसके अंदर सब लोग रहते हैं, और देयर इज अ सस्टेनिंग सिस्टम इन द फॉरेस्ट. Clear? Students, along with these, forest also helps in bringing good rainfall and protects the soil from erosion. Clear everybody? So the forest help in bringing good rainfall. Forest help to protect soil from erosion. Forest absorb rainwater and helps to maintain water table. This is very important point. अब कैसे ये maintain करते हैं, कैसे जो forest है वो absorb करते हैं? बच्चा, do you remember the structure of that canopy, understory and all that? अब क्या होता है कि by the process of evaporation and transpiration, रेन होगी तो पानी क्या होगा? एक तो पानी बच्चा सीधा जमीन पे गिरता है, तो क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब डायरेक्टली नहीं होता और वहां पे फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाती है. लेकिन ये जो फॉरेस्ट होते हैं, इनका जो कैनोपी वाला पार्ट होता है, द क्लोज्ड कैनोपी एंड मैनी लेयर्स ऑफ वेजिटेशन स्लो डाउन द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स. पानी क्या होता है, पत्तियों पे गिरता है, पत्तियों से ब्रांचेस पे आता है, ब्रांचेस से इसके स्टैम पे आता है, फिर जाके वो जमीन पे पहुंचता है. क्लियर एवरीबॉडी? तो इससे क्या होगा, जो वाटर सीपेज प्रोसेस है वो प्रॉपरली होगा, पानी डायरेक्ट आकर आपके ग्राउंड पे नहीं आएगा. Clear? And here that root system of the plant, the root system helps water to seep down in the ground. इसलिए पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. अब जो हमारा ग्राउंड है जंगल के अंदर, फॉरेस्ट में जो है, that covered ground with decaying material act like a sponge. Yes, और sponge क्या करता है, पहले पानी भर लेता है, फिर धीरे 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 वाटर सीपेज होता है, and it will maintain the water table. Clear everybody? How forests are essential, how forests absorb water and maintain the water table. Clear? Student, अब एक बहुत एक बोल दें उसको कि सोचने वाला पॉइंट है. सपोज करिए जिस हिसाब से पेड़ों की कटिंग हो रही है, जिस हिसाब से डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएं, व्हाट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट डिसअपियर? सोच के देखो एक बार, फॉरेस्ट नहीं है, दूर दूर तक नहीं है. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अर्बनाइजेशन बच्चा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जंगलों को काट काट के तो हमारे घर बना रहे हैं, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है. जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रहने के लिए जगह, काम करने के लिए जगह. तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम जंगल काट रहे हैं. दैट इज द डिफॉरेस्टेशन. Clear everybody? So what would happen if forest would disappear? So here the first is, if forest disappear, the amount of carbon dioxide in air will increase because they absorb carbon dioxide and just consume it during the process of photosynthesis. Clear everybody? Resulting in the increase of Earth's temperature, that is the global warming. और जैसे ही अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ गर्म होगी, और हमारी जो हमने वाटर में पढ़ा था चैप्टर में कि हमारा जो वाटर है, फ्रेश वाटर, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड लाइक स्नो एंड आइस कैप्स. तो वो क्या होंगे, वो ग्लेशियर्स क्या होंगे, मेल्ट होना स्टार्ट होंगे. मेल्ट होना स्टार्ट होंगे तो क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा. सी लेवल बढ़ेगा तो आसपास जो भी सिटीज़ हैं सी बैंक पे, वो क्या होंगी, वो फ्लड में आ जाएंगी. ठीक है, और इससे क्या होगा, सिटीज़ बर्बाद हो जाते हैं. सो अल्टीमेटली हमारे लिए फॉरेस्ट एसेंशियल हैं. सो अब और क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं अब इफ forest will disappear? Students, in the absence of trees and plants, the animal will not get food and shelter. अब यहाँ देखो बच्चा, यहाँ पर birds भी हैं, यहाँ पर animals भी हैं. They are just wandering here and there because they are getting proper amount of food and they are getting proper shelter. But
मान लीजिए ये पेड़ ही नहीं है, सिर्फ झाड़ झंकाड़ बचे हुए हैं, तो वहां पर ना तो बर्ड सर्वाइव कर सकते हैं ना एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं. Clear everybody? Along with this, in the absence of trees, the soil will not hold water which will cause floods. Clear? अभी तो हमने पढ़ा कि क्या होता है, ये जो ट्रीज होते हैं इनकी रूट्स क्या करती हैं, इनका जो रूट सिस्टम है वो क्या करता है, वाटर सीपेज में हेल्प करता है, नीचे तक अंडरग्राउंड तक वाटर पहुंचाता है. बट अगर ये ट्रीज, ये प्लांट्स ही नहीं होंगे, फॉरेस्ट ही नहीं होंगे, तो पानी क्या होगा, ऊपर भरा रहेगा. क्लियर एवरीबॉडी? और अल्टीमेटली क्या आएंगी, बाढ़ आएंगी. समझ में आ गया? स्टूडेंट्स, along with this, deforestation will endanger our life and environment. बिल्कुल, अगर डिफॉरेस्टेशन को नहीं रोका गया ना बच्चा, तो हम लोग एक दिन एंडेंजर होने वाले हैं. क्लियर? बिकॉज इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है, हम बहुत खतरे में, क्योंकि अल्टीमेटली फॉरेस्ट हमारे लिए लाइफ लाइन है. सो स्टूडेंट्स, think what we can do to preserve our forest. Bacha party, these forests are busy in saving your environment. So now you have to be busy for saving these forests. Clear everybody? And I hope this chapter is clear in everybody's mind. This chapter completes here. In the coming video, we will discuss the exercise part of this chapter. Students, till then revise what we learned today and what we had discussed in our previous video. So we will meet in the next video. Till then, take care everybody and thank you.